پیدائش کی کتاب بائبل مقدس کی یہ پہلی کتاب ہے اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیت مقدسہ ہم اس جگہ پر تلاوت کریں گے اور بہت سی برکت پائیں گے۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا۔ سو تو پاسے برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویہ۔ ابراہیم کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سبھی جانتے ہیں۔ تو اس کی زندگی سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ بہت سے واقف ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ابراہیم کے باپ سے بھی کتنے لوگ واقف ہیں؟ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے باپ کا کیا کاروبار تھا، وہ کیا کرتا تھا، کیا کرتا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ بت پرستی کرتا تھا۔ ابراہیم کا بھی تھی اور وہ بت بھی بیچتا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بھی وہاں پر ہی رہتا ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابراہیم بھی یہ کام ضرور کرتا ہوگا، کیونکہ اس کا باپ یہ کام کرتا تھا اور یہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کام کرتا تھا۔ اور کئی دفعہ اگر باپ بیٹا نافرمان ہو جائے، کہے میں یہ کام نہیں کرنا، باپ کو کہے، تو باپ اس کو یہ کہتا ہے کہ تو میرا نافرمان ہو گیا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر باپ کوئی بات کہے بیٹے سے کہ یہ میری بات کر اور وہ کلام سے ہٹ کر ہو، تو اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ کہتا ہے تو چنگا دعا کرن والا ہے، بائبل نو پڑھن والا ہے، تو یہ نہیں پڑھیا کہ باپ اور ماں کی عزت کر۔ پھر ہم خدا کا کلام اس کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ یہ کی عزت کر، تو کیا غلط کام میں بھی ماں باپ کی تابع داری کرنی چاہیے؟ اگر کوئی غلط کام کی طرف لے کر جاتا ہے، اگر باپ ہی بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ شراب کی بوتل پکڑ اور جا فلان جگہ پر دے کر آ، تو کیا اس کو جانا چاہیے؟ میں سمجھنا اس کو نہیں جانا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے نہیں باپ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور ابراہیم بھی اپنے باپ کے ساتھ ویسے ہی کام کرتا، بیٹھتا اٹھتا کھاتا پیتا، ہر ایک سسٹم میں یہ حصے دار تھا۔ لیکن یہ تو اپنے کام میں مگن تھا، لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ خدا کی مجھ پر نظر ہے، خدا بھی مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ خدا بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر خدا کو وہ کام پسند نہیں ہے، خدا کو کام پسند ہے تو خدا پھر بھی دیکھتا ہے۔ اور جو ابراہیم کام کرتا تھا وہ کام تو خدا کو پسند نہیں تھے، لیکن خدا اس کے فیوچر کے بارے میں جانتا تھا کہ میں اس سے کتنا بڑا کام دینے والا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے بڑے بڑے کام دینے والا ہے۔ اور ایک بات اور غور کے ساتھ سنیں، اب خدا آپ کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ آپ یہ نہ سوچتے رہیں کہ خدا آئے گا اور وہ میرے ساتھ کلام کرے گا۔ اور یہاں پر ابراہیم کے پاس خدا خود آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ کہ اس وقت بائبل مقدس نہیں لکھوائی گئی تھی، اس وقت خدا کا کلام نہیں لکھوایا گیا تھا۔ اور اب جب بھی خدا کلام کرے گا وہ اپنے کلام میں سے ہو کر بولے گا، وہ اپنے خادموں میں سے ہو کر بولے گا۔ لیکن ہم پھر بھی انتظار کرتے ہیں کہ خدا آئے اور وہ مجھے پھر کروں گا۔ جب خدا کے خادم کہتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کا یقین نہیں کرتے۔ اور آج جب خدا بولتا ہے وہ اپنے خادموں میں سے ہو کر بولتا ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا ہے جو میرے خادم کی سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو میرے خادم کی مانتا ہے وہ میری ہی مانتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر خدا خود آتا ہے، ابراہیم کے پاس خدا خود آتا ہے اور اس کے ساتھ آ کر بات کرتا ہے، اور اس کو آ کر کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آیا ہوں اور میں تجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہوں۔
تو میرا چنا ہوا ہے، لیکن جو کچھ میں تجھے کہوں گا اگر تو ویسے کرے گا تو پھر تیری زندگی میں بہت بڑے بڑے کام ہوں گے، اور آج جو خدا آپ سے کہے اپنے کلام میں سے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، پھر آپ کے خاندان میں اور آپ کی زندگی میں بہت بڑی برکت آئے گی۔ سب سے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ دے، اپنے وطن کو چھوڑ دے۔ اپنے وطن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ جگہ تبدیل کر۔ اپنے وطن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی جگہ تبدیل کر۔ ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کو کوئی شخص آ کر کہہ دے کہ تیرا ویزا آ گیا ہے اور اب تو امریکہ جا سکتا ہے، ایزیلی جا سکتا ہے، میرے پاس سارا انتظام ہے اور میں تیرا سارا انتظام کروں گا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم فوراً، اور خدا کہے کہ وہاں پہ نہیں جانا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے نہیں ہو یار، امریکہ کا ویزا آیا ہے، رشتے دار بھی یہی کہیں گے، ماں باپ بھی یہی کہیں گے، تیرے واسطے ایک بڑا اچھا راستہ نکلا ہے، میں تو کہنا تو جلدی چلا جا۔ تو اگر وہ وہاں پر جائے تو تھی جانتے ہو کہ پچھلے دنوں کے وچ ایک کشتی ڈوب کے بڑے لوگ جو ہیں مر گئے ہے، اور وہاں جا کر وہ زندہ نہیں رہتا تو کیا اس کا ماں باپ پھر کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے کیوں ایسا کیا ہے؟ تو پہلے ماں باپ بھی فورس کر رہے تھے کہ آپ جلدی کرو اور جاؤ۔ ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے اور خدا کے خادم کی رہنمائی لینی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جب ہمیں ہمارے فائدے کی بات آتی ہے، ہم کسی کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کرتے، تو جب نقصان کی بات آتی ہے تو پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہمیں بتائے تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو۔ اور یہاں پر خدا خود ابراہیم سے کہتا ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ، یعنی جگہ تبدیل کر۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی جگہ کو تبدیل کرے، یہ جگہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے، بدل۔ اور جب تک انسان اپنی رفاقت نہیں بدلتا وہ کبھی بھی برکت نہیں پا سکتا، اس کی زندگی میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ اگر آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیسے ہوں گے؟ ویسے ہی ہو جائیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو۔ تو اگر ہماری اچھی عادت ہے اور بری صحبتوں میں جائیں گے تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟ برے ہی ہو جائیں گے۔ تو اگر ہماری بری صحبت ہے اور اچھی صحبت میں چلے جائیں گے تو ہم اچھے ہو جائیں گے۔ تو ہم سوچتے کیا ہیں؟ اگر کسی کی بری صحبت ہے اور اس کو سمجھایا جائے، اس کو کہا جائے، تو وہ آگے سے کیا بات کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو ان کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کی زندگی بدل جائے، پہلے سیکھ اور پھر جا کر ان کو سکھا۔ نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑ اور اس سے الگ ہو جا۔ تو ابراہیم کے لیے یہ چھوڑنا ایک مشکل بات تھی اور بہت ہی مشکل بات تھی، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا اگر وہاں پر کوئی بہت ہی امیر شخص ہو اور اس کو کہا جائے کہ تو اس جگہ کو چھوڑ دے تو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں تو یہاں پر ہی اچھا ہوں، خدا نے مجھے یہاں پر ہی بہت سی برکتیں دی ہیں، مجھے کسی اور جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا کی بات سب سے اتم ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم خدا کی بات کو سنتے ہیں اور ویسے ہی کرتے ہیں تو پھر ہم بابرکت ٹھہرتے ہیں۔ پھر آگے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ناطے داروں میں سے نکل جا، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اپنے رشتے داروں سے الگ ہو، ان کے ساتھ نہ رہ۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ اپنی رفاقت کو بدل۔ اگر کسی بھائی کو کسی لڑکی کا فون آ جائے تو کسی کو پتا چل جائے گھر میں کہ تو اس کا فون نہ سن، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اور میں نے بہت سے بھائیوں کے ساتھ یہ بات بھی کی ہے کہ کسی بھی غیر لڑکی کا فون مت سن، یہ تیرے لیے نقصان کا سبب ہے۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں میں اس لیے سنتا ہوں تاکہ اس کی زندگی کو بدل دو، میں اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ اس کا فون سنتا ہوں۔ لیکن یاد رکھے اس بات کو اور غور کے ساتھ سنیں کہ وہ زندگی نہیں بدلتا بلکہ وہ اپنا نقصان اٹھائے گا۔ آج میں یہاں پر خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا کے کلام کو بھی سیکھنا ہے کہ اگر کوئی بہن اکیلی ہے اور کبھی بھی اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہ بیٹھیں،
कभी भी इकट्ठे एक कमरे में ना बैठे, अलग बैठें। ये आपके लिए बेहतर, आपको बता रहा हूं। और अगर कोई भी ऐसा है, अगर बहन है कोई, उसको बहन समझे। अगर हम बहन समझेंगे हमारी जिंदगी में बरकत आएगी। अगर कोई बुजुर्ग है उसको माँ समझेंगे, हमारी जिंदगी में बरकत आएगी। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और बहन को जब हम बहन समझेंगे, और एक बात और गौर के साथ सुनिए, अगर आप किसी भी जगह पर जाते हैं, खुदा के खादम हैं, ईमानदार हैं, अगर कोई बहन आपके पास आती है, आपको सलाम करती है, उसको प्यार दें। सोच बदल जाएगी, ज़हन बदल जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। प्यार देना ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई ईमानदार शख्स है, वो बहन को प्यार दे, उसके सर पर हाथ रखे। और जो अक्लमंद भाई हैं, वो अपनी बहनों पर अपना हाथ रखते हैं। हालेलुया। और हमें इस बात को सीखना है। तो जब तक हमारी रफाकत नहीं बदलती, हम कभी भी नहीं बदल सकते। अपनी रफाकत में तब्दीली लेकर आनी है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी रफाकत में कुछ भी तब्दीली नहीं आती। हम ईमानदार तो बन जाते हैं, लेकिन हमारी रफाकत में कुछ तब्दीली नहीं आती। हम बाइबल पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी रफाकत फिर भी वैसे ही रहती है। ईमानदारों के साथ हमारी रफाकत नहीं होती, दीगर और लोगों के साथ हमारी ज्यादा रफाकत होती है। इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ते, और उस दौर से हमारी तरक्की भी नहीं होती। और यहाँ पर खुदा अब्राहम से कह रहा है कि अपनी रफाकत को बदल, अपने नातेदारों से अलग हो। जो तेरे रिश्तेदार हैं, तो इनके साथ रहेगा तो इन जैसा ही हो जाएगा, इसलिए इनसे अलग हो। और रिश्तेदारों को छोड़ना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पर खुदा उससे ये कह रहा है। तो ये आज का कलाम मेरे लिए है और आप सबके लिए है, ताकि हम हर एक चीज से बढ़कर फिर हम क्या करेंगे, तरक्की करेंगे, और हर एक चीज बदलती हुई हमें नजर आएगी। हालेलुया। और जो शख्स रफाकत नहीं बदलता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अब तू बदल गया है, तो अब तेरी रफाकत भी बदल जाए, तेरी रफाकत में तब्दीली आए। लेकिन हम फिर भी वैसी ही रफाकत में रहते हैं, वही हमारे दोस्त होते हैं, वही हमारे सारे होते हैं, हम उनसे जरा भी अलग नहीं होते। और मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ अर्सा के लिए उनसे अलग हो जाएं, फिर जब आप सीख जाएं, मजबूत हो जाएं, फिर उनके साथ मिलें और उनको कहें कि तेरे लिए ये अच्छा नहीं है। हम बदलते नहीं, कुछ मजबूत भी नहीं होते, तो हम कहते हैं हम तो उनको बदलने के लिए जा रहे हैं, हम फंस जाते हैं, फिर हम आगे नहीं निकल सकते। समसून के बारे में कितने लोग जानते हैं? बड़ा तजर्बेकार था, खुदा उसकी हजूरी में रहने वाला शख्स था, खुदा के साथ चलने वाला शख्स था। लेकिन खुदा की हजूरी से उसको किसने निकाल दिया था? एक औरत ने। इसलिए कभी भी ज्यादा लंबी बातें किसी गैर औरत के साथ ना करें। अगर कोई बात होगी है तो छोटी सी बात करें, उसके बाद फोन बंद कर दें। जब हम लंबी बातें करते हैं, हम नुकसान उठाते हैं। इसलिए कभी भी कोई लंबी बात ना करें। हमारा एक अजीज है, वो हमारे पास आए और ऐसे ही उनके साथ बात होगी। उन्होंने हमारे साथ बात की कि फलां जगह पर एक हमारी ऐसे ही प्रॉब्लम है, और वो तो हमारे साथ ऐसे करती हैं, और वो किसी लड़की की बात करने के लिए आए। मैं उससे कैसे निकल सकता हूँ? और मैं उस भाई से ये कहता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि जब आप फोन पे बात से निकल जाए, ये बहुत मुश्किल काम था। क्या कोई अपने बाप के घर को छोड़ना पसंद करेगा कि मैं अपने बाप के घर को छोड़ दूं? और यीशु मसीह ने यह फरमाया है कि कौन है जो मेरी खातर अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने खेत को, अपनी प्रॉपर्टी को मेरे लिए छोड़ेगा। लेकिन जो छोड़ेगा तो उसको क्या मिलेगा? जमीन पर 100 गुना मिलेगा और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। और यहाँ पर खुदा अब्राहम को हमेशा की जिंदगी भी देना चाहता था और जमीन पर 100 गुना भी देना चाहता था। हालेलुया। और आज वो आपको भी 100 गुना देना चाहता है और आसमान की जिंदगी में शामिल करना चाहता है, ताकि हम सब आसमान की जिंदगी में शामिल हो जाएं। लेकिन ये कैसे होगा? सबसे पहले क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि हमें क्या करना है? अपने वतन को छोड़ना है, अपनी जगह को छोड़ना है। और दूसरे नंबर पर क्या है? अपने नाज क्या है? अपने बाप के घर को छोड़ना है।
जब हम अपने बाप के घर को छोड़ेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इन चीजों से बढ़कर मुझे दर्जा देना है, ये खुदा फरमाता है। अगर हम खुदा से बढ़कर इन चीजों को दर्जा देंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे ही रहेंगे। कई दफा अगर बाप कहता है इबादत पे नहीं जाना, हम इबादत छोड़ देते हैं। रिश्तेदार घर में आ जाते हैं, हम इबादत पे नहीं जाते, या कोई और ऐसा घर में आ जाता है, हम इबादत पे नहीं जाते। हम खुदा को ज्यादा अव्वल दर्जा दे रहे हैं या रिश्तेदारों को दे रहे हैं। इस वजह से हम बीमारियों में हैं, कमजोरियों में हैं, परेशानियों में हैं, तंगहालियों में हैं और परेशानियों में हम जकड़े हुए हैं, और कोई भी हमें छुड़ाने के लिए नहीं आता। जब आप आते हैं, जब आप बीमार होते हैं, रिश्तेदार आपको छुड़ाने के लिए आते हैं, कोई भी नहीं आता। जब बीमारी आती है, रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं। कोरोना के दिनों में क्या था? कोई किसी को मिलने के लिए जाता था? कोई भी नहीं जाता था, लेकिन खुदा फिर भी वहां पर मौजूद था। हालेलुया। खुदा कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तेरा बाप और तेरी माँ भी तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये खुदा फरमाता है कि तेरा बाप भी और तेरी माँ भी तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हमें उसके साथ लिपटे रहना है, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, हम बरकत नहीं पाएंगे। हालेलुया। फिर खुदा अब्राहम से कहता है कि जब तू ये काम करेगा, जो मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ, जब मैं तेरे साथ तुझे एक मुल्क दिखाऊंगा। खुदा क्या कहता है? मैं तुझे जब तू ये काम करेगा तो फिर मैं तुझे एक मुल्क दिखाऊंगा। इससे क्या मुराद है? तेरी आंखें खोलूंगा। क्या करूंगा? तेरी आंखें खोलूंगा और मैं तुझे बहुत कुछ दिखाऊंगा, और मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। एक मुल्क दिखाऊंगा। इससे क्या मुराद है? वो पूरा मुल्क तुझे दूंगा और वो तेरे कंट्रोल में होगा। हालेलुया। और तू जो कुछ कहेगा उस मुल्क में वैसा ही होगा। ये इतनी बरकत मैं तुझे दूंगा, लेकिन पहले कुर्बानी है, उसके बाद बरकत है। जब हम कुर्बानी नहीं देते, हम बरकत नहीं पाते। खुदा ने अब्राहम से ये कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर। जब उसने कुर्बान करने के लिए तैयारी की, कुर्बान कर रहा था, तो खुदा ने उसको मुहैया किया। फिर कहा मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। बरकत कब आती है? जब हमको नहीं आती। हालेलुया। और यहाँ पर खुदा अब्राहम से ये कह रहा है कि इन चीजों की मेरे लिए कुर्बानी दे। अपने मुल्क को भी, अपने वतन को भी छोड़ दे, अपने माँ बाप के घर को भी छोड़ दे, अपने नातेदारों को भी छोड़ दे, तो फिर मैं तुझे एक मुल्क दिखाऊंगा, तेरी आंखें खोलूंगा और मैं तुझे बहुत कुछ दिखाऊंगा। मैं तुझे अपनी तरफ से बहुत कुछ दूंगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा, बल्कि हमेशा तेरे पास रहेगा और कायम रहेगा। हालेलुया। तो क्या हम एक बड़ा मुल्क देखना चाहते हैं? फिर आगे खुदा ये भी कहता है तू बहुत कुछ हासिल करेगा, और जो खुदावन की आवाज सुनता है, खुदा उसकी रहनुमाई करता है। अभी खुदा ने कोई मुल्क उसको नहीं दिखाया, लेकिन खुदा कहता है मैं दिखाऊंगा, लेकिन खुदा नहीं देंगे। पहले खुदा ये देख रहा था कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, अगर ये इस बात पर एग्री होगा कि हाँ खुदा मैं वतन भी छोड़ दूंगा, मैं नातेदारों को भी छोड़ दूंगा, बाप के घर को भी छोड़ दूंगा, तो फिर खुदा ने उसको मुल्क भी दिखाना था और बरकतें भी देनी थी। हालेलुया। और अब अब्राहम इस बात पर एग्री हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी कुर्बानी है कि अब्राहम ने कह दिया कि हाँ खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मैं वतन को भी तेरी खातर छोड़ दूंगा, मैं अपने नातेदारों को भी छोड़ दूंगा और मैं अपने बाप के घर को भी छोड़ दूंगा। अगर खुदा किसी को कहे कि अपने दोस्तों को छोड़ दे, क्या कोई छोड़ने के लिए तैयार है? अगर खुदा कह देता है कि अपने बाप के घर को छोड़ दे, क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे पास कोई बरकत नहीं है, हम बेफल रह जाते हैं। ये कलाम कर रहा है कि अगर किसी के ऐसे दोस्त हैं जो आपको गलत राह पर लेकर जा रहे हैं, उनको ठोकर मारे, कहें मैं नहीं जा सकता। अगर कोई दौलत है, रुपया पैसा है, आसमान की बादशाही में आपके लिए रुकावट है, उसको ठोकर मारे।
अपने पाँव से उसको बाहर फेंक दें। कोई भी ऐसी चीज जो खुदा की बादशाही में जाने से आपके लिए रुकावट है, उसको ठोकर मारें और अपने पास ना रखें। दौलत खत्म हो जाएगी, नातेदारी खत्म हो जाएगी, रिश्तेदार खत्म हो जाएंगे, सारा कुछ चला जाएगा। लेकिन जब इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं, हर शख्स ये कहता है इसको जल्दी लेकर जाओ और काम खत्म करो। कोई भी ये नहीं कहता कि इसको रहने दो। हर एक के मुंह पर एक ही बात होती है कि जल्दी करें और जल्दी करें। लेकिन याद रखें कि जिसकी रफाकत खुदा के साथ होगी, जमीन पर लोग कहेंगे जल्दी करो, लेकिन वो अच्छी जगह पर पहुंच चुका होगा। हालेलुया। आते हैं फिर खुदा को अव्वल दर्जा दें, आप आगे बढ़ें। हालेलुया। तो क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें? तो ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है कि हम ये कुर्बानी दें, हम ये कुर्बानी दें। बहुत कम लोग हैं जो कुर्बानी देते हैं, लेकिन जो कुर्बानी नहीं देता वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं अपने वालिद के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरे वालिद साहब, मेरे फादी साहब जो थे, पास्टर थे, उनके साथ वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी करते कि तू साढ़े मुंडे को खराब करन दिया, तो है ठीक नहीं करन दिया, तेरे तो है क्यों इस तरह करन दिया, ही कुछ और चाह रहे हैं लेकिन तू कुछ और चाह रहे हैं। लेकिन याद रखें कि मैंने पादी साहब को नहीं छोड़ा था, मैंने पादी साहब के साथ ही रहा। रात के 12 बजे आना, 1 बजे आना, लेकिन फिर भी मैं कहता नहीं पादी साहब को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज एक दफ़ा में इंसल्ट हो जाए, हम कहते हैं कि नहीं छोड़ो ये इस काम ठीक है। जिन्होंने मसीह को बोल के दुख ही दुख देखे, पहले दुख है उसके बाद खुशियाँ। जब अब्राहम ने अपने नातेदारों को छोड़ा है तो उसके लिए दुख नहीं थे, उसके लिए मुश्किलात नहीं थी, मुश्किलात थी। और मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं दुआ करूँगा। ये काफ़ी लेंथी मैसेज है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अगले एतवार भी हम इसको सुनेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरी वालदा की डेथ हुई और उसके बाद कुछ महीनों के बाद वालिद की भी डेथ हुई, और मैं उन दिनों में बहुत परेशान था और मैं यहाँ पर ही था, एक जंगल में चला गया। वहाँ जाकर मैं खुदा की हजूरी में रो रहा। और जब आप रोते हैं खुदा की हजूरी में रोए, किसी के सामने रोएंगे लोग आपका ठट्ठा उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, किसी के सामने रोना बंद करें, या खुदा के खादमों के सामने जाकर अपना जो दुख है उसके साथ शेयर करें। मैं एक बहुत बड़े जंगल में चला गया और वहाँ जाकर रो रहा था, आंसू बहा रहा था कि खुदावंद मेरे बाप ने और मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद वहाँ पर आए और खुदावंद ने कहा, हाँ मुझे पता है उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन मैंने तुझे नहीं छोड़ा और मैं तुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तेरे साथ रहूंगा और तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लोग तुझे छोड़ जाएंगे तो छोड़ जाएं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और आज से याद रखें, मैंने लोगों के साथ दिल लगाना छोड़ दिया है। कोई काम खुदा का करता है करे, नहीं करता ना करे, क्योंकि मुझे खुदा ने बुलाया है, किसी इंसान ने नहीं बुलाया। मुझे खुदा ने यहाँ पर खड़ा किया है, किसी इंसान ने खड़ा नहीं किया। और जब खुदा खड़ा करता है वो गिरने भी नहीं देता, जब खुदा खड़ा करके वो कायम रखता है। हालेलुया। लेकिन हमें उसकी हजूरी में रहना है, हमें उसके साथ चलना है, फिर वो कभी भी नहीं गिरने देगा। लोग छोड़ जाएं, कभी भी परेशान ना हो। कई दफा खुदा खुद ही छांटी करता है, लोगों को निकालता है ताकि इनको निकाला जाए। और कई लोग ये समझते हैं पारी साहब ये आपकी वजह से गए हैं, मेरी वजह से या किसी और की वजह से नहीं, वो अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन हो सकता है खुदा ही उनको लेकर चला गया है, वो चर्च के लिए प्रॉब्लम हो। इसलिए कभी भी परेशान ना हो। अगर कोई चला जाता है कभी भी परेशान ना हो, मायूस ना हो, क्योंकि आपकी मायूसियां लेने वाला एक है, उसका नाम यीशु है। जब भी आप रोए खुदा की हजूरी में जाएं और उसके सामने रोए। दुनिया के सामने रोएंगे वो आपका मजाक करेंगे, ये दुआ भी करता है और फिर भी ऐसी हालत में है। खुदा की हजूरी में रोएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो जब अब्राहम को खुदा ने कहा तो अब्राहम ने सारे देखते हैं कि कोई रास्ता उसके पास नहीं था, कुछ भी नहीं था। खुदा ने कहा था मैं तुझे दिखाऊंगा। जब भी खुदा आपसे कहता है आप घर से निकलें, खुदा आपको उसी मंजिल पर लेकर जाएगा जो आपका निशान है। हालेलुया। वो कभी भी रास्ते में नहीं छोड़ता। दुनिया के लोग रास्ते में छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा यीशु रास्ते में नहीं छोड़ने वाला। वो साथ निभाता है और साथ देगा। हालेलुया। और हर वक्त उसने साथ दिया है,
اور جس نے اس کا انکار کیا تھا اس نے اس کا بھی ساتھ دیا. ہاللیلویہ. وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو پھانسی دے. یہ یسوع یہ نہیں چاہتا تھا. اس نے ساتھ دیا. پطرس نے انکار کیا, اس نے ساتھ دیا. ہاللیلویہ. اگر ہم انکار بھی کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, وہ ہمارا ساتھ دیتا, وہ کبھی نہیں چھوڑتا, کیونکہ وہ ہم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے. وہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے تیار کر رہا ہے اور ہم آگے بڑھیں گے. ہاللیلویہ.